Good morning, children. Today we will learn about pronouns. A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Means हम pronoun को कहाँ यूज करते हैं? In place of noun. Means noun की जगह पर. Pronouns are used to avoid repeating the same noun over and over again. जब हमें किसी नाउन के बारे में कुछ लिखना होता है तो हम बार बार उसे रिपीट नहीं करते. उसकी जगह क्या यूज करते हैं? हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. Just for example, he, she, it, we, you. These are pronouns. There are many types of pronoun. In this video, we learn about 8 category of pronouns. First, we learn about personal pronouns. What are personal pronoun? Personal pronoun are used as a substitute for a person's name. There are two kinds, subjective and objective pronoun. Look at the following table. ओके फर्स्टली वी नो अबाउट फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो प्रेजेंट है और बात कर रहा है. सेकंड पर्सन होता है लिसनर जो कि बात को सुन रहा है. और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे. दीज आर थर्ड पर्सन. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. आई इज सब्जेक्टिव एंड मी इज ऑब्जेक्टिव. एंड in the first row these are singular noun. I, you, he, she, it. And plural we, you, they. And objective of these noun, I, me, you is the same you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. We use he for male person and she for females. Next one, possessive pronoun. Possessive pronouns show ownership or possession of a noun. Possessive pronoun indicate that something belongs to somebody. The possessive pronoun are mine, yours, his, her, ours, theirs. मीन्स जो possessive pronouns हैं वो ownership show करते हैं. मीन्स कोई भी चीज है वो किसकी है. Just like the cat is mine. cat किसकी है? मेरी है. This is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns take the place of a noun that's already been mentioned. मीन्स जो ऑलरेडी मेंशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम दिस, दैट, दीज, दोस जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो यूज करते हैं. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इंक्लूडिंग दिस, दैट, दीज, दोस. मीन्स दिस एंड दैट आर सिंगुलर एंड दीज एंड दोस बोथ आर प्लूरल. वी यूज दिस एंड दीज फॉर थिंग्स विच आर नियर. जो हमारे पास होते हैं उसके लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं और जो हमारे से दूर होती हैं उनके लिए हम दैट और दोस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ बिग शिप एंड सेकेंड, दोज आर लवली फ्लावर. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज आर सेम. दिस, दैट, दीज एंड दोज. बट डोंट बी कंफ्यूज्ड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन demonstrative pronoun and demonstrative adjective. And this, just like that is a big ship, you are looking in this sentence, that is pronoun and is verb. after pronoun verb है तो उसको हम बोलेंगे pronoun. मीन्स जब that दिया हुआ है उसके बाद verb दी है तो वो that वहां पर क्या वर्क कर रहा है? pronoun का वर्क कर रहा है. लेकिन अगर दैट के बाद नाउन है, कोई भी नाउन आता है तो वहां वो दैट प्रोनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव का वर्क वहां पर कर रहा होता है. जस्ट लाइक दैट बैग इज माइन. दैट बैग कौन सा बैग? वो बैग. हम किसके बारे में बात करें? वह बैग. ठीक है. तो जब दिस, दैट, दिस, दोस के बाद कोई नाउन होगा तो वहां पर वो एडजेक्टिव का वर्क करेगा. नेक्स्ट, interrogative pronouns. Interrogative means used in questions. When we ask something to someone, we use interrogative pronoun. The interrogative pronoun are who, whom, which, what, whose, whoever, whatever, whichever, whomever. Whom did you speak to? What are my option? What's your name? Which is your book? These are example of interrogative pronoun. So interrogative pronoun are those pronoun
we use for ask question. नेक्स्ट वन रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव, जैसा कि रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन के लिए होगा ये. रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. We often see them when we need to add more information. The relative pronouns are who, whom, whose, which, that, what, whatever, whoever, whomever, whichever. These are relative pronoun. Relative pronouns means जो relation को show करते हैं, means जो दो सेंटेंस होंगे उनके बीच में हम रिलेटिव प्रोनाउन को लगाकर उनका जो रिलेशन है उसको शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई रियली लाइक द बुक. ये बुक जो है वो मुझे बहुत पसंद है, सच मुझ में पसंद है. दैट यू गेव मी, कौन सी, अब वो किस बुक के बारे में बात कर रहा है, दैट, उसके बारे में जो यू गेव मी, तुमने मुझे दी. ओके, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट. दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. सेकेंड वन, द गर्ल हु कॉल्ड यस्टरडे केम टू सी यू. कौन सी गर्ल के बारे में बात करें, हु कॉल्ड यस्टरडे, जिसने कल कॉल किया. ठीक है, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु, जो कि गर्ल को, गर्ल के बारे में बता रहा है, उसको रिलेट कर रहा है. किससे, उस गर्ल से. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव मीन्स गोइंग बैक टू इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो दैट द एक्शन अफेक्ट the person who performed the action. Reflexive pronouns end in self or selves. The reflexive pronoun are myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themself. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जो एक्शन को शो करते हैं, मीन्स इफेक्ट द पर्सन, उस एक्शन को जो कि पर्सन को इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेंट माई सेल्फ टू बेड. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन शो हो रहा है. आई सेंड माई सेल्फ, मैंने खुद को बेड पर सेंड किया. ही कुड हर्ट हिमसेल्फ. टिक. प्रोनाउंस. इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज और इंटेंसिफाई नाउन और प्रोनाउन. टिपिकली वी फाउंड दैट them right after the noun they are intensifying. In other words, intensive pronoun emphasize the subject of the sentence. They are written exactly the same way as the reflexive pronoun, but their function is different. For example, I myself bake the cake. Emphatic pronoun means जो emphasize करते हैं, means जो जोर देते हैं किसी वर्क के लिए. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हो, I myself, मैंने खुद ने, I myself, मैंने खुद ने केक बनाया, बेक किया उसको. तो जो ये प्रोनाउंस होते हैं ये सेम किसकी तरह होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मीन्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आल्सो माई सेल्फ, हिम सेल्फ. बट इनमें क्या है, ये प्रोनाउंस जो पर्सनल प्रोनाउंस के बाद तुरंत बाद ही यूज होते हैं और एम्फेसाइज करते हैं प्रोनाउन को और नाउन को. आई माई सेल्फ, या हम यहाँ पर नाउन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं. रिया हर सेल्फ बेक द केक. ओके, नेक्स्ट, indefinite pronouns. Indefinite pronouns don't point to particular nouns. We use them when an object doesn't need to specifically identify. Indefinite pronoun वो प्रोनाउन जिनको हम मतलब जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग को हम पॉइंट आउट नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते, और हम किसी मीन्स कुछ लोगों की बात कर रहे हैं या कुछ चीज़ों की साथ में बात करते हैं. एज सच इट कैन रिमेन indefinite. Example, most wealth is held by a select few. In this sentence, few is indefinite pronoun, क्योंकि हम यहाँ किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि few persons की बात कर रहे हैं. यानी कुछ लोग, कौन से कुछ लोग हमें नहीं पता. Nobody was found guilty in the case. In this sentence, nobody means कोई नहीं, अब वो कौन है हमें नहीं पता. So these are indefinite pronouns. Indefinite pronouns don't point to particular nouns. Means जो particular noun को point out नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, indefinite pronoun. So these are 8 categories of pronouns.